Okay, we are live. Hello, hello, hello. Good evening and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. Today is 26th of December. I hope all of you had a great Christmas. We are back with our discussion. It's 26th December today. How many of you are live on the stream? Can we have some responses in the chat? If you guys are here, I know it's vacation season. I know a lot of you are traveling, going to places, spending time with family, but ठीक है, थोड़ी थोड़ी साथ साथ पढ़ाई चलती रहे तो वो भी अच्छा है. Manasvi is here. Good evening. चलो ठीक है. Vrinda is here. Very good evening. All right, ठीक है. I hope I'm clearly audible and visible. We'll begin our discussion for the day. Let's start. You guys, if you join, please let me know in the chat box as and when you join. All right, 26th of December, let's look at today's agenda. To be honest, there's not a lot to take note of in today's articles, इसलिए मैंने आज ज़्यादा notes नहीं डाले अपनी पीपीटी में. So हम पूरा न्यूज़पेपर आज न्यूज़पेपर पे ही डिस्कस कर लेंगे. नोट्स की आज कुछ नीड मुझे फील हुई नहीं कि आप लोगों के लिए कुछ नोट डाउन करने को है. So देखते हैं आज क्या क्या है. फर्स्ट इज रिगार्डिंग राष्ट्र प्रेरणा स्थल. इसका इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने. कहाँ पे है ये, क्या है ये, थोड़ी सी बातचीत करेंगे इसकी न्यूज़पेपर पे. देन देयर इज एन एडिटोरियल ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अनदर एडिटोरियल ऑन अर्बन फ्यूचर ऑफ आवर cities. These are the couple of editorials which we'll discuss. Two more editorials which we'll also discuss on the paper itself. One is, I think, regarding doping, and another one, I think, is regarding US. So, yeah, we'll discuss all of those things on the newspaper as well as the headlines and three new vocabulary words. For that, we'll come back to our PPT. So, these are the three articles. PM inaugurates Rashtra Prerna Sthal in Lucknow. We'll discuss urban future with cities as dynamic ecosystems. We'll discuss a year of dissipating promises for Indian foreign policy. This we'll discuss. Then we'll come back to our vocabulary. So let's go to the newspaper right away. Yamika is also here. Very good evening. Let's begin our discussion by looking at today's newspaper. Okay, I hope the newspaper is now visible to everyone in the chat. Let's start our discussion. This is 26th of December, the Hindu newspaper. Let's start with the front page. The first headline, which I can see on the left hand side, says Intel grid linked to NPR with details of 119 crore residents. What is the NPR? NPR is the National Population Register. And what is NAT grid? NAT grid is the National Intelligence Grid, which is essentially a digital platform जो पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करती है to quickly access data from different government and private databases during investigation. तो आपने मूवीज टीवी सीरीज में देखा होगा ना, गवर्नमेंट कहती है जल्दी से डेटाबेस में चेक करो क्या ये अपराधी है, क्या ये हमारे किसी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड में है. तो दैट इज व्हाट नैट ग्रिड इज अबाउट, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसका फुल फॉर्म है. एंड इसको अब लिंक कर दिया गया है एनपीआर, जो कि है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से, जिसमें फैमिली वाइज डिटेल्स हैं लगभग 119 करोड़ इंडियंस की. एंड इससे फायदा क्या होगा, इससे एजेंसीज को आइडेंटिटीज वेरीफाई करने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी. इट वुड बी फास्टनिंग अप द प्रोसेस एंड क्रिमिनल और सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस वुड बिकम स्मूदर एंड फास्टर. तो दैट इज व्हाट द पर्पस इज. होम मिनिस्ट्री चाहती है कि स्टेट पुलिस और सेंट्रल एजेंसी साथ में काम करें, नेट ग्रिड को यूज करें, ताकि इंटेलिजेंस गैदरिंग और जल्दी से और प्रॉपरली हो पाए एंड क्राइम डेटाबेस जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए. तो इन्होंने काफी सारे इसके लिए अपग्रेडेड टूल्स भी यूज करना स्टार्ट कर दिए. नेट ग्रिड यूजेस टूल्स लाइक गंदीवा विच हेल्प एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एट द सेम टाइम. ठीक है. So that is what this article is about. Yash Chahal is also here. Good evening, Yash. All right. On the right hand side, you see BNP leader calls for secure Bangladesh at homecoming. Now, BNP is one of the parties and says acting Bangladesh National Party chief Tariq Rahman addresses massive rally in Dhaka, which is the capital of Bangladesh. After return from UK, he calls for freedom of expression, cautions against spies of hegemonic पावर्स. ठीक है. तो वी ऑल नो बांग्लादेश में क्या चल रहा है. वी ऑल नो इलेक्शंस आने वाले हैं एंड उसी से रिलेटेड ये न्यूज है. यहाँ की एक पार्टी है बीएनपी विच इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, एंड इनके जो चेयरमैन है तारिक रहमान,
वो बांग्लादेश वापस आए हैं लगभग 18 साल की एग्जाइल के बाद। यूके में थे ये एग्जाइल में, एंड ही एड्रेस्ड अ ह्यूज पब्लिक रैली इन ढाका। एंड उन्होंने मैसेज दिया कि हम एक सिक्योर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, एक सेफ बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, regardless of religion, regardless of region, and we want to restore law and order after the political instability. शेख हसीना की गवर्नमेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, जो इस समय इंडिया में है, आफ्टर शी गॉट रिमूव फ्रॉम पावर ड्यू टू मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो बस इतना ही है इसमें, और तो ज़्यादा कुछ नोटवर्दी नहीं है। मोहम्मद यूनुस को इन्होंने थैंक यू बोला, जो इस समय चीफ एडवाइजर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के। दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट this article. Let's move ahead and see what else do we have. City based news we can skip. अटल बिहारी वाजपेयी का हैप्पी बर्थडे है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अटल कैंटीन्स खोली हैं 45 अक्रॉस दिल्ली। ठीक है। Then 6 killed as bus catches fire. 15-foot statue of Vajpayee inaugurated in Amravati. Amravati is in Telangana. उनकी 101st बर्थ एनिवर्सरी थी थर्सडे को, यानी कि कल। Alright, nothing important here. Migrant worker from Bengal lynched in Odisha, killed for speaking Bengali, says TMC. This is not important. Majority's strength lies in ensuring that minority lives without fear, says Stalin. Okay, do we have anything important here? Not really. Nothing important here. Facing opposition, ban on use of smartphones by women withdrawn. राजस्थान में एक ये लोग प्रोविजन लेके आ रहे थे जलोर डिस्ट्रिक्ट में कि विमेन को बैन कर दिया जाए स्मार्टफोन्स यूज करने में। मतलब this is happening in 2025. It's quite astonishing to believe. Anyway, let's see what else do we have. Surat man falls from 10th floor. Christmas brings cheer to Kashmir's ailing tourism sector. Upsurge in hotel bookings. अब तो बर्फ भी पड़ गई है पहाड़ों में, थोड़ी बहुत, उतनी नहीं पड़ी है जितनी पड़ती है, but still people are now flocking to tourist places. Kashmir, Himachal, Uttarakhand. Ankita Bhandari case, this is not important. Nation remembers Shahid Udham Singh on his birth anniversary. He was a freedom fighter who avenged the Jallianwala Bagh massacre, which happened in April 1919 in Amritsar. Many of you might be aware. 26 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। वीर बाल दिवस भी है आज, which celebrates the sacrifice of Sahibzada Zorawar Singh ji and Sahibzada Fateh Singh ji. These were the sons of the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh ji. All right. Next up, we have the editorial section. Let's start with this. A year of dissipating promises for Indian foreign policy. Dissipating मतलब ऐसे बिखर गए promises जो थे। अब ये जो है आर्टिकल काफ़ी सारी चीज़ों की बात करता है, मल्टी फैसेटेड आर्टिकल है, एंड लेट्स अनपैक इट वन बाय वन करके कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही है। अंश इज हेयर, हिमांशी इज हेयर, आर्यन इज हेयर, पार्थ इज हेयर। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हु हैव जॉइंड द स्ट्रीम। वी आर डिस्कसिंग द न्यूज़पेपर, एंड आज हम अपना जो एक दो ही आर्टिकल्स रेलिवेंट हैं जो हम न्यूज़पेपर पे ही डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नॉट मच टू टेक नोट ऑफ एज सच। तो मैंने कहा चलो न्यूज़पेपर पे ही कर लेते हैं, विल सेव सम टाइम। ठीक है, तो इस आर्टिकल पे आ गए हम एडिटोरियल पे। लेट्स बिगिन। सो इनिशियली द कॉन्टेक्स्ट इज दैट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी चेंज हुई एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। मोदी जी ने अपनी एक्टिव डिप्लोमेसी फिर से रीस्टार्ट करी, काफी सारे मेजर हमने ट्रेड डील साइन करे, काफी सारे कंट्रीज और रीजन्स के साथ हमारे रिश्ते जो है स्टेबलाइज हुए, एंड एट द एंड ऑफ 2025 ईयर काफी सारे होप्स थे जो थोड़े से फेड हो गए हैं इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से, यूएस की वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। इजराइल हमास में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, रशिया यूक्रेन में भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एंड हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन है वो तो काफी अनस्टेबल चल ही रहा है। नेपाल में हमने प्रोटेस्ट देखे, श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, बांग्लादेश में भी ऑल नो हाल खराब है, म्यांमार में जनता रेजिम वहां दिक्कत है, पाकिस्तान तो एनफ सेड, कांट don't really have to say much about Pakistan. So early expectations जो थी 2025 में कि यूएस के साथ जो है हमारे रिश्ते इंप्रूव होंगे एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, वो अभी तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बोला गया था यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ हमारा एफटीए या फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा,
चाइना के साथ लेकिन हमारे डेफिनेटली रिश्ते थोड़े से इंप्रूव हुए हैं आफ्टर द एलएसी स्टैंड ऑफ। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा वाज रिज्यूम्ड with China through the Lipu Lake Pass, through the Nathula Pass. Two of the regions, one is in Uttarakhand, one is in Sikkim. एंड रशिया के साथ हमारे एनर्जी टाइज काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन को कैपिटलाइज करते हुए हमने अपने ऑयल इंपोर्ट्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे रशिया के साथ, जिस वजह से टैरिफ भी लग गए, यूएस के सैंक्शंस लग गए। बट ठीक है, धीरे धीरे जो है हमारे रिश्ते इम्प्रूव हो रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी, लेकिन जिस तरीके से होने चाहिए थे उस तरीके से अभी नहीं हुए हैं। वी ऑल्सो सॉ couple of terror attacks which happened, the Red Fort blast being one, Operation Sindoor we all know about. So काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में नहीं रही फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उसी को ये आर्टिकल्स डिस्कस करता है कि यूएस ने 25% टैरिफ लगा दिए, H1B वीज़ा के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। एंड पॉजिटिव्स ये थे कि हमने कुछ छोटी कंट्रीज जैसे यूके, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ एफटीएज साइन कर लिए, लेकिन जो बड़ी ट्रेड डील्स थी, जो यूएस के साथ होनी थी, जो ईयू के साथ होनी थी, वो अभी भी अनसाइंड हैं। चाइना और रशिया के रिलेशनशिप्स की बात करें तो चाइना मैंने आपको बताया ही, थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं रिलेशनशिप। रशिया के साथ तो बढ़िया ही है, ऐसा कुछ दिक्कत आई नहीं है। बाकी आर्टिकल थोड़ा सा पहलगाम टेरर अटैक की बात करता है कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट था वो थोड़ा सा कम था, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हमारे साथ खड़ी नहीं हुई ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जिस वजह से थोड़ा सा जियोपॉलिटिकली वीक पड़ गए हम। पाकिस्तान को सपोर्ट किया दो कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट की, विच इज टर्की एंड अजरबैजान, which shows that our relationship with them was not very strong. सऊदी और पाकिस्तान जो है काफ़ी क्लोज आ गए फ्रॉम अ डिफेंस परस्पेक्टिव, जो इंडिया को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। एंड नेबर्स में इंस्टेबिलिटी तो बढ़ी रही है, वी ऑल नो दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल काइंड ऑफ फोकस ऑन, कि सिंबॉलिक डिप्लोमेसी काफ़ी नहीं है, सिर्फ फोटो वोटो खिंचा के आ जाना काफ़ी नहीं है, हमें जो है एक्चुअल एलाइज, एक्चुअल पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे धीरे धीरे। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव हुए हैं बाय द वे, तालिबान के होने के बावजूद थिंग्स हैव गॉटन बेटर। तो उसी तरीके के हमें धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वेयर आवर प्रायोरिटीज आर क्लियर, आवर वैल्यूज आर इंटैक्ट, एंड आवर रिलेशनशिप्स आर much more stronger with the greater powers like the US, like the European Union, of course Russia and China as well. That is what this article tells us overall. ठीक है जी। All right, cool enough. Left hand side, we see fragile attractiveness. India's best efforts to bring in investment can be upended by the US. Fragile मतलब होता है नाजुक, तो इंडिया जितनी भी कोशिश कर ले इन्वेस्टमेंट लाने की बाहर से, उस पे यूएस पानी फेर सकता है, ऐसा ये आर्टिकल हमें कह रहा है। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है एफडीआई से रिलेटेड, विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के लोग हमारे देश में पैसा लगाएं। और जो लेटेस्ट डेटा है वो कहता है कि इंडिया का जो अपील है रिगार्डिंग अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स वो अभी भी काफ़ी फ्रेजाइल है, अभी भी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। नेट एफडीआई हमारा नेगेटिव चल रहा है कुछ टाइम से, एंड दिस इज बिकॉज जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं पिछले 25 अर्ली 2025 के टर्म से, जहां हमारी एफडीआई पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिर उसके बाद अप्रैल जुलाई से थोड़ा सा डिक्लाइन आना चालू हुआ, जो जुलाई के अराउंड टैरिफ लग गए थे, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया। एंड बाय एंड ऑफ अक्टूबर हमारा जो नेट एफडीआई था वो लगभग $6 बिलियन से फॉल कर गया, विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी, बिकॉज this increases the trade deficit, this impacts on bilateral trade, and Indian companies जो है बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं instead of investing in India, which is a structural issue I would say, which is an economical issue. एंड गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने की थ्रू पीएलआई स्कीम्स, विच इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, थ्रू कट्स इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स, थ्रू कॉर्पोरेट टैक्स के कट्स। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट थिंग्स आर मूविंग अ लिटिल स्लो इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। देखते हैं आगे चल के कैसा रहता है, अभी तो चीजें फ्रेजाइल है, ऐसा ही आर्टिकल कह रहा है, अभी थिंग्स आर वीकर। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम। Urban future with cities as dynamic ecosystems. This article says that merely designing better infrastructure will not deliver the desired outcome if the human element of belonging is ignored. काफी जेनेरिक सा आर्टिकल है जो बात करता है कि सिटीज प्रमोट करती हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, पॉलिसी मेकिंग, लेकिन ये जो अर्बन प्लानिंग हम करते हैं इसमें
इग्नोर कर देते हैं काफ़ी सारे लोगों को, जैसे माइग्रेंट्स को, नए रेसिडेंट्स को, जिससे गैप आ जाता है इन हाउ वी डिज़ाइन द सिटीज़, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी एक्चुअली लिव इन। एंड द ऑथर कॉल्स इट एन इनविजिबल टैक्स ऑफ एक्सक्लूजन, जहाँ पे माइग्रेंट्स से उम्मीद करी जाती है कि वो पूरी तरीके से एसिमिलेट हो जाएं, उस शहर की भाषा सीख लें, एंड लैंग्वेज बिकम्स अ वेरी नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट फॉर बिलोंगिंग टू दैट सिटी। एंड दोज हु डू नॉट मीट दिस स्टैंडर्ड पे एन इनविजिबल लिंग्विस्टिक टैक्स, कि उन लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं हर चीज़ में। एंड दिस लैंग्वेज एक्सक्लूजन हार्म्स पीपल बिकॉज दे find it harder to find jobs, they find it harder to find housing and house on rent, they find it harder to access healthcare and government benefits। एंड जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो यूजुअली उसी सिटी की लैंग्वेज में, उसी स्टेट की लैंग्वेज में ऑपरेट कर रहे होते हैं, विच क्रिएट्स अनदर बैरियर। तो जो माइग्रेंट्स हैं वो और ज़्यादा पुश हो जाते हैं टुवर्ड्स एन इनफॉर्मल इकोनॉमी, जहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है, जहाँ पे सोशल मोबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट हो जाती है, और उससे सिटीज़ का भी नुकसान होता है, क्योंकि ये माइग्रेंट लेबर्स अपनी लेबर, अपनी स्किल, अपना मनी लेके आते हैं उस सिटी को बेहतर बनाने के लिए, उस सिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, बट दे डोंट रियली गेट अ। सो थोड़े से फ्लॉज है हमारी अर्बन प्लानिंग में, थोड़ा सा होमोजीनियस पॉपुलेशन की तरफ हम inclined हैं। This invisible gap in the infrastructure creates problems for people who do not know the native language. This is a governance gap, and the author urges that we should design cities which are for all, which are more inclusive, which are more global, which are more dynamic, so that this cultural friction can be reduced, so that the old residents and the newcomers can stay together, and the efficiency and productivity and the protection of rights can be improved, and empathy can be increased, so that people who come to a new city feel belonged, feel a belongingness there, they feel comfort, they feel security, and they live like residents properly। That is what this article tells us। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा आर्टिकल है। लेफ्ट हैंड साइड पे यू सी डोपिंग मेनेस। मेनेस मतलब होता है प्रॉब्लम, दिक्कत। डोपिंग हमें पता ही है, इट्स द यूजेज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, केमिकल्स फॉर एनहांसिंग परफॉर्मेंस। यूजुअली एथलीट्स से रिलेटेड डोपिंग वर्ड यूज किया जाता है। इंडिया मस्ट मेक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वेल फंडेड एंड इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि रिसेंट हम देख रहे थे डेटा, कल परसों भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, दैट इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमर्स of doping, one of the highest percentage of doping is observed in Indian athletes, and that is what this article addresses, that India को अगर global sports power बनना है, जहाँ पे हम 2029 के फायर गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 2036 के ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो डोपिंग इज अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल इन दैट जर्नी। एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा डोपिंग के पॉजिटिव केसेस आए हैं फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। WADA, which is WADA, which is World Anti-Doping Agency, उनका डेटा कहता है कि पॉजिटिविटी रेट इंडिया में 3.6% है। फ्रांस एंड इटली फॉलोड इंडिया इन नंबर ऑफ केसेस, मतलब इंडिया थर्ड आया इन नंबर ऑफ केसेस, एंड टोटल टेस्टिंग की बात करें तो इंडिया वाज सेवेंथ, अ लिटिल बिहाइंड चाइना। अब नाडा कह रहा है कि दीज हायर पॉजिटिव केसेस आर ड्यू टू इंक्रीज टेस्टिंग। वो कह रहे हैं कि केसेस पहले भी थे, पहले टेस्टिंग कम होती थी, अब टेस्टिंग बढ़ गई है, इसलिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, विच इज वेरी लेम एक्सप्लेनेशन आई वुड से, बट ठीक है। नाडा कह रहा है कि काफी इंप्रूवमेंट आया है पहले से, पॉजिटिविटी रेट जो है कम हो गई है, एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड प्रमोशन ऑफ anti-doping campaigns and all. But the problem is a little deeper. Problem is the athletes are trying to evade these tests by showing lack of discipline. And doping is not just limited to athletes, it's also prevalent in support staff, also in coaches who are helping these athletes in doping. So this is a more of a systemic failure and not isolated incidents। अब athletes क्यों लेते हैं डोपिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला रीजन है, इट्स नॉट जस्ट फॉर एथलेटिक परफॉर्मेंस, इट्स ऑल्सो कि अगर आप परफॉर्म करते हो स्पोर्ट्स में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, सो दैट टेम्प्ट्स एथलीट टू टेक शॉर्टकट्स। फिर ह्यूज कैश रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं अगर आप इंटरनेशनल मेडल जीत के लाते हो। ओलंपिक मेडल आप अगर जीत जाते हो तो आप एक नेशनल हीरो बन जाते हो एक तरीके से। सो इट्स ह्यूज इंसेंटिव, ह्यूज रिवॉर्ड अगेंस्ट द रिस्क, and they also ignore the health risk involved in the usage of these bad substances। So doping is mostly driven by need, greed and ignorance is what you could say। Bottom line is कि काफी डैमेज कर रहा है इंडिया के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को एंड एथलीट्स की हेल्थ को, एंड वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स इट वेरी प्रॉम्प्टली।
Okay, आगे चलते हैं. Can propaganda be great art? This is regarding the movie Dhurandhar, which people are saying has got parallels with true incidents, but ठीक है, not important for us. यूएस नेवल मूव्स अगेंस्ट वेनेजुएला. ये हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं. यूएस की नेवी जो है वेनेजुएला के ट्रेडिंग रूट्स ब्लॉक कर रही है, उनका ऑयल रूट ब्लॉक कर रही है. यूएस सीज्ड और इंटरसेप्टेड 3 वेनेजुएलन ऑयल टैंकर्स, स्किपर, सेंचुरीज एंड बेला वन फॉर कैरिंग क्रूड और ट्रेडिंग with sanctioned entities. Skipper was shipping oil to Cuba at subsidized rate, aiding Maduro. Maduro is the president of Venezuela, Nicolas Maduro government. Centuries was stopped after a Venezuelan Navy escort Belavan had been previously sanctioned for trading Iranian oil. These ships are examples of how of the shadow fleet, showing countries like Venezuela bypass sanctions, prompting US to order a physical blockade. All right. ठीक है. Now case plea in Supreme Court against Singer's real term. Court hearings must be in language people understand, says Akhilesh. School teacher shot dead inside AMU. Photos of Sabrimala gold theft case accused with Sonia Gandhi triggered. Nothing important here. Indian Army relaxes social media policy, allows passive participation. तो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को पहले बिल्कुल भी सोशल मीडिया एंगेजमेंट अलाउड नहीं था. अब पैसिव पार्टिसिपेशन अलाउड है. वो जो है व्यू कर सकते हैं, कंटेंट मॉनिटर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और एक्स पे, बट एक्टिवली एंगेज अभी भी नहीं कर सकते. पोस्टिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग, सेंडिंग मैसेजेस, ये सब अभी भी प्रोहिबिटेड है टू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स. जुलाई 2020 में Indian Army had directed all their officers and soldiers to delete their Facebook and Instagram accounts along with 89 mobile apps. Banned list include 59 apps linked to China. LinkedIn can be used for professional purposes like uploading resumes. All right. PM inaugurates Rashtra Prerna Sthal in Lucknow. Spread over 65 acres, the lotus-shaped memorial has 3 towering bronze statues of our ex-PM Atal Bihari Ji and Hindutva ideologies, Deen Dayal, ideologues, not ideologies, ideologues Deen Dayal Upadhyay and Shama Prasad Mukherjee. थोड़ी सी देख लेते हैं बातचीत इसकी. Atal Bihari Vajpayee, we all know, was one of the former prime ministers, also a very key leader of the Bharatiya Janata Party. एंड ये जो है गोमती नदी के किनारे बनाया गया है लखनऊ में, लोटस की शेप में, 3 ब्रॉन्ज स्टैचूज. एंड यहाँ पे पहले गार्बेज डम्प्स हुआ करते थे विच वर क्लियर्ड एंड नाउ दिस म्यूजियम, लोटस शेप म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड हियर. This was the 101st birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee ji, the birth anniversary of Madan Mohan Malviya ji as well. This is also celebrated as Good Governance Day. मोदी जी ने कहा कि दिस रिप्रेजेंट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, यूनिटी, सर्विस टू द नेशन. बाकी भी राजनाथ सिंह जी आए, योगी साहब आए एंड सबने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी. That's pretty much it. Aravali Row, BJP Congress straight charges over mining data. All right, carrying the red flag to the next century. Nothing else is important in the rest of the newspaper. नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं. It will handle 20 million passengers per annum. Future expansion to 90 million passengers per annum. Okay, nice. Then US military ordered to focus on quarantine. Quarantine मतलब घेर लेना एक जगह of Venezuela oil, says officials. The move signals a preference for economic sanctions rather than military intervention to pressure Caracas. US president had earlier stated that it would be smart for Nicolas Maduro to leave power. Coast Guard is reportedly pursuing a third vessel, Bella 1. Trump-backed candidate wins Honduras presidency. China flays Pentagon. Report alleging bid to weaken US-India ties. Israel slams countries over new West Bank settlement. Myanmar Junta sets late January date for final round of poll. ठीक है. Sports maybe there's nothing significant today. All right, that's pretty much about the newspaper for the day, guys. Let's come back to our PPT, do our vocabulary because we've done all the articles which were relevant on the newspaper itself. We've done Rashtriya Prerna Sthal, we've done Urban Future, we've done Dissipating Promises for Foreign Policy. We have some questions in the chat box which I'll address. Let me just complete the vocabulary part.
I'll answer all your questions. The first word is propensity, which is an inclination or natural tendency to behave in a particular way. Tendency, inclination, proneness. Antonyms are dislike, disinclination, indisposition. The sentence is he has a propensity for drinking too much alcohol. The next word is called chochke. It's pronounced Chochke, chochke. This is a fancy word. It simply means a small object which is displayed for attractiveness or interest. Showpiece जिसको आप कहते हो, souvenir, knick-knack, ornament, shelves cluttered with tchotchkes from a lifetime of vacations. And the last word is gadabout. Gadabout मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे आवारा घूमते रहना. One place to another, aimlessly roam, wander, nomad, homebody, inhabitant are antonyms. She was a thoughtful gadabout, always picking up souvenirs for her friends from wherever her travels took her. That brings us to the end of our discussion for the day. Now let me address your questions. Riddhi is saying, how should I be making an error logbook for English and logical reasoning? I'm confused. What should the exact format be? There's no fixed format as such. You just need to analyze your mock and see. First of all, आपने जो क्वेश्चन गलत किया, व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड मेकिंग दैट मिस्टेक. आपने कोई सिली मिस्टेक करी, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी था, टाइम टेकिंग था, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, या फिर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं था, बाद में आपने आंसर चेक किया, यू रियलाइज दैट आंसर की इज राइट. कुछ भी रीजन हो सकता है. आई एम सेइंग what you need to understand and identify is note down these patterns, note down these mistakes so that you can look at them before attempting the next mock. अब जैसे मान लो कोई पैसेज का क्वेश्चन है which is asking what is the tone of the author in the passage, आपने वो गलत कर दिया, तो सबसे पहले आपका काम होगा कि नोट करना कि योर टोन क्वेश्चन वेंट रॉन्ग. देन उसके नीचे लिखो उसकी डिफिकल्टी लेवल आपको क्या लगी, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट. देन उसके नीचे आप लिखो कि व्हाट वाज योर रीजन फॉर गेटिंग इट रॉन्ग, दैट यू डिड योर तुक्का गो रॉन्ग, डिड योर कैलकुलेशन गो रॉन्ग, डिड योर अंडरस्टैंडिंग गो रॉन्ग, व्हाट वाज द रीजन ऑफ चूजिंग इट रॉन्गली. एंड फिर लास्ट में आप लिखोगे आपका कॉल टू एक्शन सीटी है, आपको उसमें करना क्या है, टोन्स फिर से रिवाइज करना, दैट इज योर कॉल टू एक्शन. तो इस चार तरीके के चार कैटेगरीज आप बना सकते हैं, चार रोज आप बना सकते हो किसी भी एरर से रिलेटेड, कि व्हाई वाज दैट एरर कमिटेड, हाउ यू कुड हैव प्रिवेंटेड दैट, एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर choosing that particular option, and if there is any pattern which you noted, what was the difficulty level and what can you do about it. These are the 3-4 things which you do for any particular error which you commit. This is for every subject. मैंने इंग्लिश का एग्जांपल दे दिया, but you can apply the same technique for all the 5 subjects. ठीक है, so that is your way to maintain your error logbook. Anjani saying, how do I access marathons, manthans on the CL website? It's not on the CL website, it's on your CL portal. ठीक है, आप पोर्टल पे जाओगे, वहां आपको जीके सेक्शन मिलेगा, वहां आपको मंथन मैगजीन मिल जाएगी. फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो यू कैन राइट एन ईमेल टू सपोर्ट. जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू support@careerlauncher.com. मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है. कोई भी आपको क्वेरीज हो टेक्निकल रिलेटेड टू एक्सेसिंग मटेरियल रिलेटिंग टू मॉक्स, जस्ट शूट अ ईमेल ऑन दिस and people would help you out. Aspirant is saying, please don't teach us newspaper. For CLAT, reading makes an aspirant better. I failed to crack CLAT 23 because I used to listen to these videos rather than reading by my own. I did not ask you to not read on your own. In fact, that is what I recommend. That is what I expect, that you read the newspaper and you come to this analysis to get a deeper understanding, to ask me questions on what you did not understand. My job is not to teach you the newspaper. My job is to analyze the newspaper for you and to make it simpler for you. So you're approaching it the wrong way. I don't know what your name is, and it's not because you kept on listening to these videos, it's because you failed to develop your own skills of reading the newspaper. जितने भी बच्चे जो इस साल, बहुत सारे इस साल ऐसे स्टूडेंट्स थे who went to top 3 NLUs, who were regular attendees of this stream, Priyanshi being one, Pratmesh being one, so many of them, Gopinath being one, stellar double digit ranks, single digit ranks, so many rankers who were regular attendees of my session. So it's not about the video per se, it's about your approach to it. ठीक है, तो आपकी अप्रोच सही होगी तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट.
Spirit is saying concentrate on LR and reading comprehension. Don't drain yourself in months, either weekly or monthly. Do mocks at least 3 times a week. See, I appreciate that you're trying to help other people. I really appreciate that you are thinking better for others. I applaud that. But everyone's journey is different. Everyone's strategy is different. So I would just suggest everyone that everyone, not even these guys, even you should do whatever you feel best. आपको इस वीडियो से वैल्यू नहीं मिल रही मत देखो. आप किसी को मिल रही है तो वो देखे. ठीक है? It should be on the aspirant to make that decision from his own wisdom. Vrinda is saying, is the newspaper enough for covering legal current affairs? This year, legal section was full of current affairs. I would not say the newspaper is sufficient. I would say that you supplement it with another resource. It could be Bar and Bench. It could be there's another website. क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा. Legally India, I think. कोई सी भी एक लॉ रिलेटेड वाली वेबसाइट आप ट्रैक करो वीकली. आई वुड सजेस्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर में ना बहुत सारे ऐसे लीगल अपडेट्स होते हैं जो नहीं कवर्ड होते. बोथ द न्यूज़पेपर्स, हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस. मेजर तो ऑफ कोर्स कवर होंगे, बट काफी सारे ऐसे लीगल अपडेट्स होते हैं, नीश लीगल अपडेट्स, जो छूट जाते हैं न्यूज़पेपर में या फिर उतने हाईलाइटेड नहीं होते न्यूज़पेपर में. सो आई वुड रिकमेंड दैट वंस अ वीक यू गो टू वेबसाइट्स लाइक बार एंड बेंच and check if there are any important judgments, important bills being passed, all of those things, so that you are able to supplement your legal current affairs. Okay. How to prepare GK notes from newspaper? It should be written in different parts like national, international, and all. That's one way to go about it. One way is categorizing it like you have mentioned, Yamika. Another way is doing it date wise. कि एक डेट आप डाल लो, कैलेंडर डेट, और उसके नीचे जो भी आपको रेलेवेंट न्यूज हैं उनके हेडलाइंस लिख लो, और फिर न्यूज़पेपर से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो तो आप नोट करो ही करो. बट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड, आई रिकमेंडेड दिस लास्ट ईयर एज वेल, कि आप कंटेक्चुअल तैयारी बहुत करो. अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू किया था विद वन ऑफ आवर टॉपर्स. आप जाके देखना, उसकी एलेट में आई थिंक रैंक 42 आई है. सो इट्स ऑन द चैनल, आप जाके देखना. उसने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं विच वी डिस्कस्ड थ्रू आउट द ईयर, कि आपको कंटेक्चुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई टॉपिक हमने न्यूज़पेपर में किया, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड का जाके पढ़ो, विकीपीडिया पे जाके पढ़ो कि भाई बांग्लादेश का क्या हिस्ट्री है, बांग्लादेश कैसे एग्जिस्टेंस में आया, शेख हसीना की गवर्नमेंट कब थी, कितने टर्म्स के लिए थी, क्या कॉन्टेक्स्ट है, बीएनपी का क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये जो लीडर 18 साल एग्जाइल के बाद आया है इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है. यू शुड बी वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स. यू शुड dig deeper into topics, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है. you have that advantage, you can go deeper into topics. at least जो बड़े टॉपिक्स हैं जो लगातार न्यूज में रहते हैं उनमें तो एटलीस्ट डीप थोड़ा सा आपको जाना चाहिए, because we all see that CLAT is now asking very factual type of questions which are very specific. So that is something which you guys have to do on your own, because इस आधे एक घंटे के सेशन में हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे होते हैं, and it's humanly not reasonable to give you guys all the pointers or to cover all the news or to make it completely comprehensive. We try, but still it's important that you guys supplement it with your own learning as well. Okay, so that would be my recommendation, my suggestion. बाकी go for it. और कोई डाउट हो तो आप लोगों से पूछ सकते हो कभी भी. Always there for you. ठीक है, with that we'll end today's discussion. Thank you so much for listening till the end. I'll see you guys now on Monday. I'll meet you guys on Monday now with another Hindu analysis at 8 p.m. ऋषित अभी मेंटी करेंगे हम, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट करेंगे. थोड़ा और स्ट्रीम पे लोग आ जाए, 20-25 का टर्न आउट आना स्टार्ट हो जाए, देन वील स्टार्ट आवर मेंटी क्विजेस. ठीक है, ciao, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, हैव अ ग्रेट वीकेंड.